Good morning, students. As you know, in the last lecture, in the last video, we have studied about the nucleophilic addition reactions mechanism. That how to a nucleophilic addition reaction happens. And in this video, we will start with the nucleophilic addition reaction followed by the elimination of H2O. Means ऐसी nucleophilic addition reactions जिसमें elimination होगा H2O molecule का. So how it happens? Suppose we are taking our carbonyl compound and it reacts with the H2NZ. H2NZ is what? It is the derivative of ammonia. Okay, it is the derivative of ammonia. So what will happen? This CO bond will be break and this will be dissociated into H plus and H and Z. H and Z. ठीक है. So this will be the minus. So minus go to the carbon and H plus go to the oxygen. Okay. So यहाँ पर आप चेक कर सकते हो. That is COH and NHZ is attached on the carbon. Okay. Now what will happen? There will be a formation of water molecule, and what remaining part is what? C double bond NZ. That is your final product. So ऐसे reaction होगी one by one हम सबको check करते हैं. First reaction with hydroxylamine. Hydroxylamine is the derivative of ammonia. So there are different kind of examples of derivative of ammonia. ठीक है. तो फर्स्ट हम करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन. इट में बी एल्डिहाइड और कीटोन. ओके. सो सी डबल बॉन्ड H2NOH. What is the hydroxylamine? Hydroxylamine is NH2OH. It is called hydroxylamine. So this will form H2O, and this carbon then now join with this carbon and nitrogen will be joined together. So now what will the product? Okay, medium is acidic and H2 will be removed. So C double bond NOH. It is called oxime. Oxime will be formed. So when you got a question that convert the carbonyl compound into the oxime, you can take the help of the hydroxylamine. Next reaction is hydrazine. So what is the hydrazine? Hydrazine is NH2NH2. So again H2 and O will be form H2O, and what will be the product? C double bond NNH2. तो यहाँ पर आपका बन गया हाइड्रेजोन. C double bond NNH2. It is very simple. Next is reaction with phenyl hydrazine. And what is the phenyl hydrazine? In this, one hydrogen is replaced by the phenyl group of the hydrazine. So ये हो जाएगा आपका NH2 NH. Okay, we can write it in this form, that is the benzene. तो phenyl NH and NH2. This is the phenyl hydrazine. ठीक है. तो यहाँ से H2 रिमूव होगा. Okay, so that will be the H2 and the O of the carbonyl compound. They will form H2O. Then C join with the nitrogen, so it will be C double bond N and phenyl. It is called phenyl hydrazone. So please remember this thing. Hydrazine is converting into hydrazone. Okay. Next is reaction with 2,4-diphenyl 2,4-dinitrophenyl hydrazine. ठीक है. तो जो phenyl है उसके ऊपर 2 नाइट्रो ग्रुप भी अटैच्ड है. 2,4 डाइनाइट्रो. फेनिल है और हाइड्रेजिन है. ठीक है. सो यहाँ पर अगेन H2 प्लस O, H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा. देन यू कैन जॉइन दिस कार्बन विद दिस nitrogen. So it will be C double bond N NH and phenyl and 2 NO2 groups on this phenyl. So that will be the 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Again hydrazine is converting into hydrazone. It is used as DNP test, orange और red PPT. Okay, कार्बोनिल कंपाउंड का DNP टेस्ट के लिए डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन टेस्ट में ये यूज होता है. सो एट फाइनल वी गॉट द ऑरेंज और रेड PPT, तो वी कैन कंफर्म दैट इट इज द कार्बोनिल कंपाउंड इज प्रेजेंट. Now reaction with semi-carbazide. So what is the semi-carbazide? Semi-carbazide is NH2 NHCO NH2 है ना. Semi-carbazide is NH2 NHCO NH2. So again H2 is formed. This C will combine with the N and the product will be C double bond N NHCO NH2. Okay, यहाँ पे पूरा रहेगा. That will be the C double bond N. ठीक है. उसके बाद में NH और उसके बाद में CONH2. तो वहाँ पे कट हो रहा है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है. CONH2 हो जाएगा. कंप्लीटली CONH2 है ये. नाउ तो दैट इज द सेमी कार्बेजाइड, और ये क्या बन जाएगा? सेमी कार्बेजोन. क्या बन जाएगा बेटा? सेमी कार्बेजोन. क्लियर. हाइड्रेजीन हाइड्रेजोन, सेमी कार्बेजाइड कार्बेजोन. ठीक है. दीज आर द रिएक्शंस ऑफ द अमोनियम डेरिवेटिव. ओके. अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शंस. रिडक्शन रिएक्शंस किससे होगी? फर्स्ट हम देखेंगे रिडक्शन टू एल्कोहल. मींस वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द एल्डिहाइड इनटू द एल्कोहल. ऑक्सीडेशन से क्या बना था? एल्डिहाइड.
अब रिडक्शन रिवर्स कर लो तो रिडक्शन से बनेगा बेटा अल्कोहल. सो इट इज अवर मिथेनॉल. मिथेनॉल मीन्स अवर कार्बोनिल कंपाउंड, वन कार्बन एल्डिहाइड. ठीक है. सो वी कैन यूज हियर हाइड्रोजन. रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ NiPTPD, they are the catalyst, or we can use LiLH4 और NiBH4, both are reducing agent. So आप किसी भी मेथड से कर सकते हो. You can directly take hydrogen in the presence of catalyst, or you can take LiLH4 or NiBH4. Okay, so they will provide two hydrogens to this aldehyde, और यहाँ पर ये एक H इधर और एक H इधर ऐड हो जाएगा. देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? चेक करो, CH3OH हो रहा है, दैट इज द CH3OH, इट इज कॉल्ड मिथेनॉल. सो व्हेन यू टेक दी 1 डिग्री एल्डिहाइड तो क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल. दैट इज सेम जैसे प्रीवियस रिएक्शन हमने प्रिपरेशन में पढ़ा था, दैट काइंड ऑफ. ओके, 1 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री से 2 कीटोन से 2 डिग्री बनेगा. सिंपल है. अब व्हेन वी टुक दी एसिड एल्डिहाइड को भी चेंज करो आप. सी डबल बॉन्डो को ब्रेक करना है, सी डबल बॉन्डो ब्रेक करना है, एच को ऐड करना है, दैट विल बी 1 डिग्री अल्कोहल. इट इज इथेनॉल. टू कार्बन सेम कार्बन बन गया. ओके, नाउ व्हेन वी आर टेकिंग दी एसीटोन, सो एसीटोन में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच इधर एक एच इधर, तो दैट विल बी CH3CH OH एंड CH3. तो CH3CH3 CHOH 2 डिग्री अल्कोहल. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. सेम जैसा हमने पहले पढ़ा था, दैट इज व्हेन वी टेकिंग एल्डिहाइड तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, एंड वाइस वर्सा. अल्कोहल लोगे 1 डिग्री तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा. एंड व्हेन वी टेक कीटोन देन वी विल फाइंड दी 2 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, तो ये कन्वर्जन में क्वेश्चन हो सकता है. ओके, सो प्लीज फॉर्म दी 2 डिग्री अल्कोहल, तो वो कीटोन यूज करना है. ओके, सो नाउ रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन. किस में रिडक्शन करेंगे? हाइड्रोकार्बन में. जब इसका कंप्लीट रिडक्शन कर देंगे दैट टाइम हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो फर्स्ट थिंग इज द क्लीमेंशन रिडक्शन. व्हाट इज इट? इज द क्लीमेंशन रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है क्लीमेंशन रिडक्शन. In what? ZnHg and concentrate HCl is used. ZnHg and concentrate HCl is used. They will provide 4 hydrogen. So what will happen? Firstly, this bond is break. Hydrogen, हाइड्रोजन. ठीक है, यहाँ पर अभी अल्कोहल फॉर्मेशन हो गया. अगेन सेकंड बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो यू कैन चेक हियर, यहाँ पर CH3 और ये भी CH3 प्लस H2 का फॉर्मेशन हो गया. वन टाइम इसका अगर रिडक्शन होता है तो एट टाइम वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है. अगर कंप्लीट रिडक्शन करवा दोगे क्लेमेंसन रिडक्शन से, तो दैट टाइम ये बन जाएगा आपका इथेनॉल. ओके, सपोज वी आर टेकिंग हियर कीटोन एंड इसका भी कंप्लीट रिडक्शन करवा दिया ZnHg और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में, दैट टाइम इट इज क्लेमेंसन रिडक्शन, और ये बन जाएगा CH3 प्लस H2. सो इट इज द हाइड्रोकार्बन, इट इज द प्रोपेन, इट इज द इथेन. सो वी आर कन्वर्टिंग द एल्डिहाइड और कीटोन इनटू द हाइड्रोकार्बन, लाइक प्रोपेन, लाइक इथेन. ओके, लाइक एल्केन ना. So next is Wolff-Kishner reduction, very important. Wolff-Kishner reduction नेम रिएक्शन है. ओके, इसमें क्या यूज करना है? NH2NH2. ठीक है, NH2NH2. और यू कैन टेक दी एल्डिहाइड और कीटोन. तो फर्स्ट हम एल्डिहाइड को पढ़ेंगे. एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड और इसका H2 दे विल रिमूव. ठीक है, H2 यहाँ से और O यहाँ से, ये रिमूव हो गया. तो अभी अपने पास फ्री कौन हो गया? कार्बन. यहाँ फ्री कौन हो गया? N, तो ये उससे ज्वाइन हो जाएगा. ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो CH3 देन H, ये देखो CH3 है, ये भी CH3, देन H, देन H, देन C, देन C. अब यहाँ पर डबल बॉन्ड किसके साथ आएगा? नाइट्रोजन के साथ में. डबल बॉन्ड नाइट्रोजन देन NH2. ओके, अब क्या होता है? when we take KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस विल रिमूव द नाइट्रोजन फ्रॉम दिस कंपाउंड. सो यहाँ से नाइट्रोजन जब सपोज निकल गया ये नाइट्रोजन, तो ये H दैट कन्वर्ट कंबाइन हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ में. सो दैट विल बी दी CH3. आप चेक कर सकते हो कैसे बनेगा. तो ये भी कन्वर्जन है हाइड्रोकार्बन में, है ना. इट इज वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. एक एग्जाम्पल और चेक करते हैं, दैट इज द एसीटोन और दिट इज अवर NH2. सो दैट विल फॉर्म H2O मॉलिक्यूल. अगेन नाइट्रोजन इससे कंबाइन हो जाएगा, देन NH नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो चेक करो CH3 हो गया, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे ये वाले, तो दैट विल बी CH3 CH2 प्लस N2. ये डायरेक्ट लिखा हुआ है. ओके, समझ सकते हो आप, इसको डिटेल में हमने पढ़ लिया ऑलरेडी. सो that is the Wolff-Kishner reduction. So Clemenson and Wolff-Kishner reduction are very important. Okay, so now the next reaction after reduction reaction is oxidation reaction. So what is the oxidation reaction? means इसमें ऑक्सीजन ऐड करना है ना. तो फर्स्ट थिंग इज ऑक्सीडेशन टू एल्डिहाइड नहीं होगा, ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड होगा. ठीक है, हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं. सो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर लूँ बेटा, एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड में आपको
you for the oxidation you can use the mild oxidizing agent, mild oxid like टोलन reagent, फेलिंग reagent, है ना. सो यू कैन यूज, ये थोड़ा क्या इजी है, माइल्ड से भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा. बट कीटोन, कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना रहेगा, इसलिए सी एच बॉन्ड के कंपैरिजन में कार्बन कार्बन बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है ना, टफ है. सो दैट्स वाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसका ऑक्सीडेशन आप नहीं कर सकते. यू कैन यूज दी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज द कीटोन. तो सिंपल थिंग माइंड में क्या रखना है, aldehyde can be oxidized by the mild oxidizing agent, weak oxidizing agent, but ketone can't. So ketone can be oxidized by strong oxidizing agent. So ketone और aldehyde में अगर differentiate करना है, suppose both have carbonyl group, both have carbonyl group present, but आपको differentiate करना है कि it is aldehyde और ketone, तो you can use here the mild oxidizing agent. तो mild से अगर जो हो गया ना वो क्या होगा बेटा, aldehyde होगा, ketone तो होगा नहीं. So that's why this method is used to distinguish between the aldehyde and ketone. और प्रैक्टिकल लैब में, प्रैक्टिकल सिलेबस में ये जो अपना प्रैक्टिकल है ये आपको करना है. सो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो चेक करो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और क्या बन जाएगा, आर सी ओ ओ एच, यानी कि एसिड बन जाएगा. कैसे बन जाएगा, आर सी ओ एच, आर सी एच ओ यूज़ कर रहे हैं फर्स्टली, हम आर सी एच ओ ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं. यू कैन यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन होगा. यू कैन यूज ऑल्सो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक सी आर ओ थ्री, लाइक पी सी सी, लाइक फेलिंग सॉल्यूशन, लाइक टोलिन रिएजेंट. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आर सी डब्ल्यू एच में, कार्बोक्सिलिक एसिड में. ठीक है, तो दैट इज द ऑक्सीडेशन. अब हम तो कैसे करवाते हैं, फर्स्ट हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन बाय टोलेन रिएजेंट. तो जनरल इन्फॉर्मेशन हमको लेनी होगी अबाउट द टोलेन रिएजेंट. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग नेम टोलेन. व्हाट इज टोलेन रिएजेंट? सो टोलेन रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. मींस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है. AgNO3 तो है ही है, साथ में उसमें कौन प्रेजेंट है, अमोनिया भी प्रेजेंट है. इट इज द अमोनिकल, अमोनिकल मतलब NH4 भी होगा. तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. तो किस किस फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड plus 2AgNO3, that will be silver oxide, अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O. ओके, सो यहाँ पर हम चेक करेंगे प्लस H2O, देन दिस Ag2O, दिस जो Ag2O बना ना, इस Ag2O ने अगेन किससे रिएक्शन किया, NH4OH से, एंड दे विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्लस H2O, दैट Ag अमोनियम NH3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोक्साइड. सो इसको बोलते हैं अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. इट इज द टोलेन रिएजेंट. ओके, टोलेन रिएजेंट. Silver mirror test, very very important in the practical. Silver mirror test of aldehyde, it is done by the Tollin reagent. So वो कैसे होता है, when we took the aldehyde, suppose we have aldehyde compound and we use the Tollin reagent with it, okay, in basic medium, so that will form RCO minus. अब RCO minus का मीनिंग क्या हो गया, RCOO minus भी लिख सकते हैं इसको हम, RCOOH भी लिख सकते हैं. इट इज द एसिड. सो इट मीन्स इट गेट्स ऑक्सीडाइज. ओके, प्लस 2Ag सिल्वर हो जाएगा, प्लस 2H2O प्लस 4NH3. ठीक है, तो ये कैसे टेस्ट होता है. अच्छा, यहाँ पर आपको सिल्वर मिल गया, देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्योर सिल्वर यहाँ पर फॉर्मेशन में आपको आ गया है. दैट सो एक सेकेंड, देन सपोज वी आर टेकिंग हियर दिस टेस्ट ट्यूब, एंड टेस्ट ट्यूब में सपोज हमने कोई अननोन सॉल्यूशन लिया है, it may be aldehyde or not. Okay, so when we use the tolerant reagent, suppose it is the aldehyde, तो सिल्वर मिरर यहाँ पर फॉर्मेशन होगा. सिल्वर मिरर मीन्स जो आपकी टेस्ट ट्यूब है पूरी बाहर से कैसी हो जाएगी, सिल्वर हो जाएगी, बिकॉज आपको रिएक्शन में 2Ag का फॉर्मेशन हो रहा है. दैट्स वाई दिस टेस्ट ट्यूब अपीयर लाइक दी सिल्वर टेस्ट ट्यूब. ओके, दिस टेस्ट इज नॉन, अच्छा कीटोन होगा तो ये टेस्ट नहीं देगा, सपोज कीटोन नहीं देगा, बिकॉज टोलेन reagent is mild oxidizing agent, it can't be oxidized the ketone. So this test is known as Tollin test, and both aliphatic and aromatic aldehyde reduce Tollin reagent but ketone can't. So aldehyde देगा, ketone test नहीं देगा. That means we can distinguish with the help of this. Okay, oxidation by Fehling solution. नेक्स्ट, तो रिडक्शन किसका करना है, Fehling solution का. Fehling solution is also oxidizing agent, weak oxidizing agent. So what is the Fehling solution? You know that there are two kinds of Fehling solution, A and B. ओके, एक ब्लू कलर का होता है और एक नॉर्मल कलरलेस होता है. ठीक है, सो फेलिंग सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग रोशेलेस सॉल्ट. रोशेलेस सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना. व्हाट इज द नेम ऑफ रोशेलेस सॉल्ट, इट इज सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट. व्हेन एल्डिहाइड इज हीटेड विद फेलिंग सॉल्यूशन, द फेलिंग सॉल्यूशन इज रिड्यूस टू रेड पीपीटी. कौन सी पीपीटी बन जाएगी, रेड पीपीटी. उसमें क्या टेस्ट था, सिल्वर मिरर, इसमें रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड. और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दी रेड पीपीटी, इट इज द कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड. प्रैक्टिकल वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ओके, एंड दिस रिएक्शंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दी वाइवा. सो प्रिपरेशन कैसे होती है, देखो चेक करो, ये टेस्ट ट्यूब है, सपोज वी आर टेकिंग हियर एल्डिहाइड,
फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी, फेलिंग बी इज व्हाट, एल्कलाइन सॉल्यूशन, एक सेकंड है, फेलिंग बी इज एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोचेलस सॉल्ट एंड ये है आपका एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। तो फेलिंग ए इज ऑफ ब्लू कलर, है ना, ब्लू कलर का, और ये रहेगा आप कलरलेस। दोनों को मिक्स करोगे तो फाइनल फेलिंग सॉल्यूशन बन गया ब्लू कलर का। जो ब्लू कलर है बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा, सपोज कलरलेस और ब्लू को आपने ऐड किया फेलिंग ए प्लस बी को, सो व्हाट इज द फाइनलाइज कलर, it is the blue color. But you are taking aldehyde in the test tube and heated it on the burner, so finally this blue color will be converted into the red color. अगर red color आ गया means हम confirm हो जाएंगे that will be the aldehyde, यहाँ पर aldehyde है, so RCHO is added, red PPT, aldehyde present। अच्छा कैसे होती है रिएक्शन चेक करते हैं। RCHO और आपके पास कौन है, कॉपर सल्फेट है, बेसिक मीडियम है, एल्कलाइन सॉल्यूशन है ना, सो फेलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रिडक्शन होगा तो रिडक्शन होकर ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में। तो Cu2O जो है, और यहाँ पर आपका माई फाइनली फॉर्मेशन हो गया, दिस एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज इनटू द RCO माइनस एसिड में, ठीक है, प्लस 3H2O फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस Cu2O, और इस Cu2 का कलर कैसा है, रेड ब्राउन पीपीटी। सो व्हेन द टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन है वो रेड ब्राउन कन्वर्ट हो गया कलर में, दैट मीन्स Cu2O इज फॉर्म्ड, एंड Cu2O तभी बनेगा जब यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, कीटोन नहीं कर सकता है। ओके, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, यानी कि फेलिंग टेस्ट। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, पढ़ेंगे हम। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में क्या होता है, अनलाइक द एल्डिहाइड कीटोन डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बोनिल कार्बन। जो आपका सी डबल बॉन्ड हो है ना बेटा, एल्डिहाइड में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर होता है एच, ठीक है, तो हमको इस बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन करना है, सो यू कैन easily break this CH bond and oxidize the carbonyl carbon, so that is it is done by the mild oxidizing agent, but in the ketone you know that, that is the carbonyl carbonyl suppose, और यहाँ पर भी कौन है, C, और यहाँ पर भी C, तो there is no CH bond, between hydrogen and the carbonyl carbon, so you have to oxidize, suppose you are going to oxidize this carbon, so you have to break this bond, और कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना it is not easy, okay, so that's why ये थोड़ा टफ रहेगा, इसलिए हम वीक से नहीं कर सकते हैं, सो हमें स्ट्रॉन्ग यूज करना पड़ेगा। सो दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज विदाउट क्लीवेज ऑफ CC बॉन्ड, सो कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाई weak oxidizing agents such as Tollens reagent or Fehling solution, that's why these are used to differentiate aldehyde and ketone। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने में इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब कीटोन के केस में है तो कुछ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं कुछ, इनकी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है एल्डिहाइड और कीटोन की, दैट फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, ओके कैसे करेंगे देखो, इट इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो रिएक्शन विथ NaOH और X2 प्लस NaOH, तो कंफ्यूज नहीं होना है, व्हेन यू टेक दी X2 प्लस NaOH ना, तो अल्टीमेटली ये भी क्या बनाएगा आपका, NaOX ही बनाएगा, NaOX बनाएगा, और ये X और H मिलके HX बना लेगा, तो ये NaOX यहाँ से आ गया, ठीक है। सो हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होगी, यू आर टेकिंग दी कीटोन एंड NaOX, तो दैट विल बी RCOO, Na बन जाएगा यहाँ से, और X और CH3 निकल के CHX3 बना देगा। CHX3 क्या होता है चेक करो, आपने लिखा होगा CHCl3, ऑलवेज क्लोरोफॉर्म, CHI3 is iodoform, so we can write in general CHX3, X3 is हेलोजन, तो ये क्या हो गया, हेलोफॉर्म रिएक्शन, अल्टीमेटली क्या बनता है, हेलोजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड कंटेनिंग CH3CO माइनस ग्रुप व्हेन ट्रीटेड with excess of halogen in presence of base or alkali produce haloform is known as the haloform reaction। suppose Cl2 plus NaOH ये बनाएगा NaCl which is called sodium hypohalite, है ना, तो ये आकर CH3CHO ले लिया, दोनों की रिएक्शन है, ये कोई कीटोन के लिए पर्टिकुलर नहीं है, कीटोन के लिए भी है और एल्डिहाइड के लिए भी। तो CH3CHO प्लस 3Cl2, अब ये रिएक्शन कैसे हो रही है चेक करो, NaOH यू आर यूजिंग NaOH, सो यहाँ से बन जाएगा 3HCl, ठीक है, ये 3HCl। अब क्या बचा, सपोज यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं 3Cl, तो ये 3Cl कहाँ ऐड हो गया, इस पे जाकर के ऐड हो गया, और ये CCHO ऑलरेडी है, CCHO है, ठीक है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिमूव हो गया और 3HCl बना लिया, सो हाइड्रोजन के प्लेस पे Cl ऐड हो गया, अब यहाँ से ब्रेक कर दो, है ना, तो इधर ONA और इधर H, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड विच इज कॉल्ड क्लोरल, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरल। CCl3CHO याद होगा आपको, अपने DDT बनाया था CCl3CHO से, क्लोरल, है ना, इस क्लोरल का NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, तो ये देखो NaOH और H इस टाइप से डिवाइड होगा, ONA और H, तो ONA यहाँ ऐड हो गया और H इधर ऐड हो गया, ये देखो CHCl3 हो गया,
और ये आपका ये HCON है। इसको डिटेल में स्टडी करें तो ये चेक करो आप यहाँ पर। सपोज वी आर टेकिंग दिस एल्डिहाइड, यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक सेकेंड, ये हमने एल्डिहाइड लिया है CH3CHO, तो ये 3Cl, ये इस H के साथ, ये तीनों H के साथ निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH और ये Cl3, ठीक है, CH और Cl3। अब क्या बचेगा, डायरेक्ट इसको बता रहा हूँ मैं आपको, और आपको समझना है अगर डायरेक्ट कि ये कैसे बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज दी बेस्ट थिंग। ओके, यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन जो है इसके साथ निकलेंगे, 3Cl इसको रिप्लेस करेंगे, देन NaOH इसको डिवाइड करके इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, बाय द बेसिक मीडियम इट विल फॉर्म क्लोरल फॉर्म दी क्लोरोफॉर्म। ओके, बाकी डायरेक्ट आपको याद रखना है तो आपको ऐसे रख सकते हो, HNCl3, तो CHCl3 का फॉर्मेशन हो गया, प्लस क्या बन गया, HCONA प्लस 2NaOH। ओके, सो इट इज the end of this topic. After this we will go through the aldol condensation reactions, है ना, the reactions due to presence of alpha hydrogen, they are very important reactions, so we will take in that another and separate video. So all the best to all of you from यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। इफ़ यू एनी क्वेरी यू कैन आस्क टू मी। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।